Hello, today we are going to discuss the basics of cardiovascular pharmacology. Now, starting with the basic part, that is the structure of heart. ठीक है? So, first of all, we are going to discuss the chambers. हमें पता है कि there are 4 chambers. ठीक है? The upper 2 are receiving chamber and the lower 2 are donating chamber. एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से आगे कोई भी पार्ट आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे. ठीक है? Each and everything I am going to present here is the important one. Receiving chamber, the upper part, जिसे हम कहते हैं atrias, और जो below one, that is the donating chambers, जिन्हें हम कहते हैं ventricles. There are two atrias, the right atria and the left atria. इनका काम होता है कि either oxygenated blood और deoxygenated blood इन दोनों को कलेक्ट करना and then आगे उनके respective ventricular part में आगे वो पुश करते हैं. सो हियर आफ्टर द एट्रिया देयर आर टू वेंट्रिकल्स जिन्हें हम डोनेटिंग चेंबर्स कहते हैं. राइट वेंट्रिकल से ब्लड आगे एक रिस्पेक्टिव ऑर्गन की तरफ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है. सो दीज आर आवर चेंबर्स. नाउ आई हैव ड्रॉ वन ग्रीन कलर लाइन हियर व्हिच इज सेपरेटिंग द एट्रियाज फ्रॉम द वेंट्रिकल्स. इस ग्रीन कलर के लाइन को हम कहेंगे सेप्टम, whose role is to anatomically divide the atrias from the ventricles. Now, the next point we are going to discuss is the heart wall. अभी यहाँ से आगे आपके conceptual points शुरू होते हैं. Heart wall is divided into the 3 layers. ठीक है? Based on the type of tissue present in that layer. 3 layers है heart wall के. Okay? The first one, अभी हम यहाँ से जाएंगे from outer side to the inner side. The outermost, this is the curved line that represent the outermost layer of heart wall. This layer is known as the epicardium, which is the outermost one. Now, the origin of epicardium is the connective tissue. Epicardium के बाद में जो middle layer है heart wall का, उसे कहेंगे हम myocardium. ठीक है? Myocardium consists of the muscle tissue. Now wait a minute. Connective tissue, muscle tissue. Recall that we had studied the 4 tissues at the time of ANS. There are 4 tissues: epithelial, then connective tissue, then muscle tissue, और ANS में जो basics में discuss किया वो था neural tissue. So this one, the epicardium, is formed of connective tissue. The myocardium formed of muscle tissue. एक basic point है. Out of all these 4 tissue, the stronger one is the muscle tissue. So the role prescribed here to myocardium 1 is based on its strength. Now इन 3 layers में से myocardium एक major portion consist करता है. ठीक है? And its role is to properly contract and relaxation activity. ठीक है? अगर हमें पूछा जाए out of these 3 layers which one is the most essential for that contraction relaxation process, the answer will be myocardium. Now 2 layer हो गए, outermost, middle one. अभी जो innermost layer है, ठीक है, किसी भी organ की innermost lining या innermost layer एक specific type के tissue से बनती है, वो आपको ढूंढना है. So I have not written that part here. So जो innermost layer है उसे कहेंगे हम endocardium. Okay, I hope तीनों भी layers आपको clear हो चुके होंगे. The first one is the epicardium, the second one is myocardium, and the last one is the endocardium. Now these are the 3 layers of heart wall. Heart की wall रहेगी, उसके 3 layers रहेंगे. एक word यहाँ पे लिखा है, that is the subendocardial region. ये word आपको आगे चल के angina pectoris और CHF इस chapter में essential रहेगा. Now, what is meant by subendocardial or the subendocardial region? The answer will be the region which present at deeper layers of myocardium and early or the initial levels of endocardium. यानी myocardium एक ज्यादा हिस्सा consist करता है पूरे heart walls में से. ठीक है? और जो myocardium का deeper region रहेगा आखिरी का, ठीक है, वहां से subendocardial region start होता है. ये आपको याद रखना है. मैंने अभी तक आपको क्या बताया? चेंबर्स, देन उसके बाद में वॉल.
वॉल के कितने लेयर्स है? 3। इसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दिस 3 लेयर्स ऑफ हर्ट वॉल वन आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग इज प्रेजेंट। मैंने 2 वर्ड्स यहाँ पे यूज किए, दैट इज द आउटर मोस्ट एंड द प्रोटेक्टिव कवरिंग। So obviously these words indicate its position and its role, and that is the pericardium. That blue line present here is the outermost protective covering over the heart, and it is not the part of heart wall. Is it clear to everyone? I hope yes. So हमने chambers study किए, walls, outermost covering. We know what is meant by subendocardial region. अभी इसके बाद में चलते हैं for what all this is there, ठीक है, for the systole and the diastole process. As said कि रिसीव होने के बाद में हार्ट ब्लड आगे पुश करेगा, यहाँ से आगे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, बट ये होता कैसे? ठीक है, ऑब्वियसली द आंसर विल बी फ्रॉम द 8th और 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, दैट विल बी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इन वर्ड्स को कुछ एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल wordings use किए जाती है, that is the systole and the diastole. Whenever any of these chamber is undergoing contraction, okay, that contraction is known as the systole, and whenever any of these chambers are undergoing relaxation, that will be known as the diastole. So systole मतलब contraction and diastole मतलब relaxation. अभी इस प्रोसेस का यूज क्या है, आपको ये अच्छी तरीके से पता है। When you have to collect the blood in any chamber, उस वक्त उस चेम्बर को रिलैक्स होना पड़ता है, that represents the diastole. और जब ब्लड कलेक्ट हो जाता है, आगे पुश करना है, तो उस चेम्बर को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, उसे कहते हैं सिस्टोल। यहां तक क्लियर है? ओके। नाउ इमेजिन अ बलून, ठीक है, एक गुब्बारा आपको इमेजिन करना है, स्पेशली दैट वी आर गोइंग टू यूज एट द टाइम ऑफ होली, ठीक है। अब जब उसमें पानी भरते हो तो वो फूलता है, ठीक है, इट मीन्स इट इज रिलैक्सिंग, वो गुब्बारे के जो वॉल है वो रिलैक्स होते रहते हैं, और तब जाके कहाँ पे आप उसमें पानी भर सकते हो। और जब आप उसको पैक करते हो या फिर आपको उसको स्ट्रेच करते इमीडिएटली ऐसे दबा देते हो, तो उस टाइम पे उसमें का पूरा पानी बाहर आएगा, ठीक है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन। अभी इसका रिलेवेंस यहाँ पे क्यों आ रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जिस्ट करता है फॉर द कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी। नाउ इमेजिन दैट बलून, ठीक है, आप उसे सपोज 30 ml की पानी की कैपेसिटी का वो बलून है, बट आप इंस्टेड ऑफ 30 ml यू आर पुटिंग द 40 और द 45 ml इन दैट, क्या होगा? हायर देन द नॉर्मल द वॉल्स विल बी स्ट्रेच, एक लिमिट से ज्यादा उसके वॉल्स स्ट्रेच हो जाएंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। सो सिमिलरली जब डायस्टोलिक प्रोसेस होती है तो हमारे जो हार्ट के चेंबर्स है वो एक लेवल से ज्यादा स्ट्रेच होते हैं। सो ऑब्वियसली हार्ट को ये सेंस होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे और यहाँ पे फॉर इमेजिनेशन एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग 30 ml ब्लड आ रहा है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल कैपेसिटी का था। हार्ट इज एबल टू डू विथ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी, वो 30 ml इजीली आगे पुश करेगा। बट अगर इंस्टेड ऑफ 30 ml आई हैव एडेड द 45 और 50 ml, यहाँ पे हमने 45 और 50 ml ऐड किया है। नाउ व्हाट विल हैपन, हार्ट के जो एट्रियल वॉल्स है वो एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं व्हाई आई एम पुटिंग दैट इंपॉर्टेंस ऑन द वर्ड स्ट्रेच, मैं उस स्ट्रेच वर्ड को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि अगर 30 ml यहाँ पे आ रहा है तो 30 ml यहाँ तक जाएगा। नॉर्मल कैपेसिटी 30 ml पंप आउट करने की है, बट हमने ऐड कितना किया 45 ml, ये नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा है। सो वेंट्रिकल्स को रेडी रहना पड़ेगा उस 45 ml को पंप आउट करने के लिए। और ये होगा कैसे, जब वेंट्रिकल्स को बताया जाएगा कि यू हैव मोर वर्कलोड नाउ, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस एट द टाइम ऑफ डायस्टोल, अगर एट्रियाज में एक लिमिट से ज्यादा ब्लड आता है तो कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं, दोज आर द बैरो रिसेप्टर। ये सेंस करते हैं कि नॉर्मल रूटीन वॉल्यूम से ज्यादा ब्लड एट्रियाज में आया है, तो ये इमीडिएटली मैसेज सेंड करते हैं टू द सिंपैथेटिक सिस्टम, एंड सिंपैथेटिक सिस्टम मींस व्हिच वन, दैट एड्रिनर्जिक वन। उसके अपोजिट कौन सी थी, पैरासिम्पैथेटिक, द कोलिनर्जिक वन।
दोनों के रोल आपको अच्छे से पता है। सिंपैथेटिक सिस्टम का काम क्या है, हार्ट को और ज्यादा एक्टिव करना, और पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है, हार्ट को इनएक्टिव करना। सो जब डायस्टोल के वक्त ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी तो एट्रिया पे बैरोरिसेप्टर एक्टिव होंगे, वो मैसेज किसे सेंड करेंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम को। अभी सिंपैथेटिक सिस्टम में से जो नॉर एड्रेनालिन आ रहा है उसका काम क्या है, हार्ट को और ज्यादा एक्टिव करना। सो दैट्स व्हाई द वेंट्रिकल्स विल बी रेडी टू पंप आउट दैट एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ ब्लड, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दोस स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द एट्रिया एट द टाइम ऑफ डायस्टोल। ठीक है, इट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट विल बी बेटर इफ यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। आगे चलते हैं वेंट्रिकल्स की तरफ। जैसे हमने एट्रियास का स्ट्रेच के बारे में डिस्कशन किया, वैसे ही वेंट्रिकल्स पे भी होता है। वेंट्रिकल्स का रोल क्या है, ब्लड पंप आउट करना आउट ऑफ द हार्ट। ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या होता है, अगर आप एक लेवल से ज्यादा ब्लड उसमें ऐड करते हो, ठीक है, सो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायस्टोल वेंट्रिकुलर वॉल विल बी एक्स्ट्रा स्ट्रेच। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो ये सेंस करेगी। सो यहाँ पे जो in case of ventricles the sarcomere muscle tissues are present, okay, that sarcomere tissues sense that extra stretch on ventricular wall, ठीक है। सो ये डिस्कशन था विथ रिस्पेक्ट टू डायस्टोल। नाउ हम सिस्टोल और डायस्टोल जब हमने डिफाइन किया, और व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग द सिस्टोल और डायस्टोल, ये इसका पर्पस क्या है, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ circulation, and now we are going to study the part of blood circulation. Again come back to this part. दो receiving chambers थे, atria and दो donating chambers थे, ventricles and ventricles, ठीक है। अभी आपको पता है कि यहाँ पे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम द सिस्टेमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द ऑल ओवर द बॉडी, and this deoxygenated blood enters into the right ventricles. This deoxygenated blood from the right ventricles is pumped out to the lungs for the purpose of oxygenation, ठीक है। So right ventricle से blood जाएगा lungs में, जहाँ पे आपके blood का oxygenation होगा। From the lungs the blood will again come back to the left atrium. Now this left atrium will receive the oxygenated blood. This oxygenated blood now will enter into the left ventricle, और यहाँ से ब्लड जाएगा पूरे बॉडी में फॉर द पर्पज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। नाउ स्टार्ट करते हैं सपोज राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम में कौन से टाइप का ब्लड आया था, डीऑक्सीजनेटेड, एंड डोंट फास्ट फॉरवर्ड इट। राइट एट्रियम में से आगे जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल्स नाउ फ्रॉम हियर अप टू द दिस पॉइंट, it represents the pulmonary circulation. Right ventricles to the lungs, from the lungs to the left ventricle. This circuit is known as the pulmonary circulation. And now from the left atrium the blood goes into the left ventricle, और यहाँ से जो cycle शुरू होगा up to the right atrium, that will be known as the systemic circulation. Left ventricle to the body system, from the body system again back to the right atrium. This will be known as systemic circulation. अभी ये होता कैसे, वायरलेस कनेक्शन तो है नहीं ब्लूटूथ की तरफ, ब्लूटूथ की हेल्प से ऑर्गन में ज्यादा डायरेक्टली ब्लड जाएगा। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू नीड सम कनेक्शंस और द वायर्स और द मोर प्रॉपरली सम ट्यूबिंग्स, और जो बॉडी में ट्यूब्स यूज होते हैं उसे हम कहते हैं वेसल्स। नाउ कम बैक टू दिस इमेजिनरी हार्ट व्हिच इज अगेन डिफिकल्ट टास्क। अभी होता क्या है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ टू वेन्स, ठीक है। अब वेन्स और आर्टरी का डिफरेंस आपको पता है, द सुपेरियर वेना कैवा एंड इंफेरियर वेना कैवा। अब इनके सरनेम तो सेम है बट नेम अलग है, व्हाई, बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द हार्ट, ठीक है। सुपेरियर समवेयर लाइंग अबव, इंफेरियर समवेयर लाइंग डाउन, ठीक है। सो दिस टू वेन्स draws the blood into the right atrium, आगे वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से आगे आपको ब्लड लंग्स तक पहुंचाना है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी द ब्लड इज सप्लाइड टू द लंग्स।
ठीक है, हमारे पास दो लंग्स होते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड। आर्टरी इनिशियली एक सिंगल लाइन से आती है, ठीक है, एंड देन इट इज ब्रांच्ड इनटू द टू मेन आर्टरीज, ठीक है, द राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी के दो डिविजन्स होते हैं फॉर द लंग्स। अगेन यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा और यहाँ से जो एक वैन VEIN वैन जो ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम को ब्लड सप्लाई कर रही है, दैट वैन इज नोन एज द पल्मोनरी वैन। ये समझना है, एंड दिस पार्ट इज नोन एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स। जब आप CHF पढ़ते हो, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, तो वहां पे जो वर्ड है कंजेशन और द पल्मोनरी कंजेशन, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल हियर, बट डेफिनेटली आपको एक इंपॉर्टेंट हिंट यहाँ पे मिल जाती है। नाउ with the help of pulmonary vein, you brought the blood into the left atrium. From the left atrium, it will enter into the left ventricle. ठीक है, अभी यहाँ पे हमें वैसल कुछ लगने वाला है क्या? नहीं, only the valves are there which separates. So blood आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है with the help of aorta. And this is your systemic circulation or the important vessel. Now यहाँ पे ग्रीन कलर में कुछ लिखा था मैंने, दैट इज द कोरोनरी सर्कुलेशन। अभी होता क्या है कि वी हैव वन हार्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ अस, ठीक है, सबके पास एक है। सो हार्ट के केस में होता क्या है, इट इज अ कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑर्गन। सो जब आप कंटिन्यूअसली काम करते हो तो उसे चाय पानी देना पड़ेगा, ठीक है। द हार्ट डिमांड्स ओनली द ब्लड बट कंटिन्यूअसली विदाउट एनी इंटरप्शन। अगर बाय चांस थोड़ा भी अगर आप मिस कर देते हो तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट सम कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। अभी वो देखते हैं डिटेल में कैसे। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द स्मॉलर आर्टरी दैट गोज ओवर द हार्ट वॉल, ठीक है। अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं कि हार्ट को ब्लड का सप्लाई जरूरी होता है, तो हार्ट इज द हॉलो ऑर्गन, ठीक है, सिर्फ एक हॉलो ऑर्गन है, अंदर ब्लड रहता है जो आते जाते रहता है, ठीक है, लाइक अ होटल रूम, नोबडी इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर परमानेंट। सो यहाँ पे ब्लड की डिमांड जब हार्ट क्रिएट करता है तो नॉट फॉर इनसाइड बट फॉर दिस वॉल्स। सो स्टार्ट करते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी सप्लाई होती है टुवर्ड द हार्ट वॉल, ठीक है। अभी हम ऑब्वियसली ये सोचेंगे कि ब्लड अगर अंदर है तो अंदर से बाहर जाने में क्या दिक्कत थी, बाहर से अंदर क्यों जा रहा है, ठीक है। The artery, the branch of aorta, ठीक है, it's supplied from the outermost layer of heart wall to the innermost layer, ठीक है, यानी ये डायरेक्शन में ब्लड सप्लाई हो रहा है। That artery is present over the epicardial layer. KDT में एक लाइन मेंशन की है, the coronary artery runs epicardially। इसका मतलब ये है कि that main conducting artery, ठीक है, जो इनिशियल वन है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बाय द लोकेशन ओवर द एपिकार्डियल लेयर, और देन वहां से उसके ब्रांचेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो इट रन्स एपिकार्डियली एंड देन गेट डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ ब्रांचेस अप टू द एंडोकार्डियम। इतना क्लियर हुआ? देन हार्ट वॉल्स ऑक्सीजन ब्लड या ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, एंड देन दैट कार्बन डाइऑक्साइड और that degraded products are loaded onto the blood, and this deoxygenated blood is goes into the right atrium with the help of cardiac veins. इसे हम कहेंगे coronary circulation. Now discussing or speaking about the coronary artery only. Location क्या है? Epicardium. With comparison to the important arteries of other organs like kidney or the liver or the lungs, this coronary artery is relatively narrower, ठीक है। main branch, main or the important conducting vessel toward the heart, itself is a narrower at initial level। इसका मतलब ये शुरुआत से ही इसका डायमीटर नैरो रहता है, यानी ज्यादा ब्लड तो सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पक्का करेगा प्रॉपर्ली। होता क्या है कि हार्ट कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, उसे कंटिन्यूअसली अच्छे ब्लड की जरूरत पड़ेगी, यानी दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और जब वो कंटिन्यूअसली ब्लड डिमांड करता है, ठीक है, लाइक द अदर ऑर्गन्स, ब्रेन,
or the lungs or the liver or the kidney, these are highly perfused organ, यानी इन्हें continuously blood का supply, उसमें से भी oxygenated blood का supply देना पड़ता है, उन्हें कहेंगे हम highly perfused organ. So heart is also highly perfused, इसे continuously blood का supply देना पड़ता है. Now यहाँ से शुरू होता है असली खेल. Any reduction in the blood flow will definitely create cardiovascular complication. ठीक है. Now थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं. सब एंडोकार्डियल रीजन, हमारी जो इंपॉर्टेंट आर्टरी है दैट इज द कोरोनरी आर्टरी, ये कहाँ से भाग रही है? फ्रॉम द एपिकार्डियम लेयर. देन उसके बाद में उसके ब्रांचेस हो गए, ये डीपर लेयर है हार्ट वॉल्स का. आप यहीं पे अगर उसका ब्लड फ्लो कम कर रहे हो तो आखिरी के लेयर को कुछ मिलने वाला है क्या? नो. सो क्या होगा? अब अगर उसे खाने पीने ही नहीं दे रहे हो तो वो वॉल टिकेगी क्या? नो. सो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू डैमेज और द डाई. ठीक है, और इसे कहेंगे आप कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन. एंड हियर योर कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी स्टार्ट्स. कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी या फिर कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में होता क्या है? व्हाई दिस कॉम्प्लिकेशंस आर क्रिएटेड? बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो. ठीक है, जैसे ही मैंने हार्ट वॉल्स को ब्लड फ्लो का रिडक्शन कर लिया, अंदर के लेयर्स को प्रॉब्लम होना शुरू कर दिया. ठीक है, दोस प्रॉब्लम्स अराइविंग आर द नेम्स ऑफ योर चैप्टर्स. ठीक है, बट वो क्यों हो रहे हैं ये समझ के लीजिए. बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो. नाउ अंडरस्टैंड विच आर दीज रीजंस दैट कि उसके वजह से ब्लड फ्लो में रिडक्शन हो रहा है, एंड दोज आर रिटन हियर. These names come under the vascular disease, जैसे कि अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड द वैसोस्पाज्म. वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं. अथेरोस्क्लेरोसिस, नाम तो सुना ही होगा. ठीक है, अथेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है कि जो आर्टरी है, ठीक है, वी आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अबाउट द आर्टरीज एंड नॉट द वेन्स हियर. आर्टरी के केस में होता क्या है कि that LDL, VLDL और कोलेस्टेरॉल, लिख के लो, समझ में नहीं आता होगा तो LDL, LDL, then next one VLDL, VLDL and then कोलेस्टेरॉल. तो ये जो फैटी मटेरियल है ये ब्लड वेसल्स के वॉल के अंदर जमा होने लगते हैं. ठीक है, इससे कुछ ज्यादा बेनिफिट तो नहीं होता मटेरियल फिल करने की वजह से, बट एक नुकसान जरूर होता है कि जो आर्टरी की इनर डायमीटर है, जो हॉलो स्पेस है जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, वो डायमीटर कम होगा. अगर आपने पाइपलाइन का डायमीटर कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो बहने वाला पानी वो उसकी वॉल्यूम या क्वांटिटी भी कम होने वाली है. सो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर एंड द हियर आल्सो. अथेरोस्क्लेरोसिस में बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल दैट रिडक्शन ऑकर्स और आगे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं. द सेकंड प्रॉब्लम इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं? द रीजंस ऑफ रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो. आगे के कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ इसी स्टेज पे. सेकंड प्रॉब्लम वाज द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के केस में होता क्या है? कुछ डिपॉजिट नहीं होता, लेकिन जो वॉल्स है ना, वॉल्स हार्ड होने लगती है. दे आर नो मोर इलास्टिक. हमारे घर में कभी कभी एक पुराने जमाने में, नॉट नाउ, पाइप आते थे ग्रीन कलर के, स्पेशली डार्क ग्रीन. वो पाइप का एक डिसएडवांटेज होता था, उन्हें एक 1.5-2 महीने धूप में रख दो वो हार्ड हो जाएंगे. वो पाइप पे एडजस्ट भी नहीं होते थे, पानी में आते हुए भी डिफिकल्टी क्रिएट करते थे. और अभी जो पाइप आ रहे हैं, ठीक है, काफी सॉफ्ट रहते, ट्रांसपेरेंट रहते, दे आर मच मोर इलास्टिक टाइप, फ्लेक्सिबल टाइप. ठीक है, उन्हें कैसे भी मोल्ड करना ईजी होता है. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के केस में होता क्या है कि वो आर्टरीज जो है वो हार्ड होने लगती है. दे आर नो मोर इलास्टिक. ठीक है, और वो जो ब्लड वॉल्यूम का चेंज है उसे सपोर्ट नहीं करती. दे आर रेजिस्टिव. ठीक है, वो कहते हैं इतना डायमीटर है, इतना ही डायमीटर रहेगा. और उसकी वजह से जो जब एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो की जरूरत पड़ती है हार्ट को, जब ज्यादा वर्क होता है, जैसे कि आप खेल कूद करते हो, तो वो टाइम पे ये डिसीज आपको सपोर्ट नहीं करता ज्यादा ब्लड फ्लो के लिए. एंड देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. दिस वाज द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. आगे है वैसोस्पाज्म. नाउ एक चीज यहां से आगे याद रखो, whenever VASO, वैसो, ये वर्ड जहां कहीं पे भी आएगा, इट इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द ब्लड वेसल्स. ये आपको याद रखना है.
सो इसके बाद में जो दूसरा वर्ड है स्पाज्म, स्पाज्म का मतलब क्या है आपको पता है, दिक्कत होना, ठीक है, ऑर्गन के केस में पेन होना। सो वैसोस्पाज्म का मतलब क्या है कि आर्टरी को तकलीफ हो रही है, ठीक है। नाउ वैसोस्पाज्म का मतलब होता क्या है, तकलीफ इन द सेंस उसके इमोशंस हर्ट नहीं होते, आर्टरी का कंस्ट्रिक्शन होता है एबनॉर्मली टू द एनी केमिकल स्टिमुलाई, ठीक है। अभी एनी केमिकल स्टिमुलाई मतलब ये भी नहीं कि कोई भी बॉडी का केमिकल आर्टरी तक पहुंचेगा या फिर एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल एंड दैट विल कॉज द कंस्ट्रिक्शन, नो, देयर आर सर्टेन वैसोकंस्ट्रिक्टर स्टिमुलाई जिसके वजह से एक एबनॉर्मल कंस्ट्रिक्शन, एब्रप्ट, ठीक है, ट्रांजिएंट, थोड़ी देर के लिए रहेगा लेकिन जितने भी देर होगा वो बहुत डेंजरस रहेगा। सो वो कंस्ट्रिक्शन होता है, उसके वजह से आर्टरी को तकलीफ होती है एंड दैट इज नोन एज द वैसोस्पाज्म। ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द वैस्कुलर डिसीज और ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे विच आर नोन एज द cardiovascular complications. For example, the names of your chapter, that is angina pectoris, then myocardial ischemia, then congestive heart failure, arrhythmia also. arrhythmia में बहुत लोगों को लगता है कि हार्ट के इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है, बट दैट इज नॉट द केस, रीजन इसका यही से आता है, ठीक है। सो arrhythmia is also there, congestive heart failure और hypertension. So all these things come one by one. अभी इसके बाद में we have studied heart, we have studied circulation, उसके बाद में coronary circulation study किया, we have seen the vascular disease। आगे एक छोटा सा एक पॉइंट है जो इससे रिलेवेंट तो नहीं है बट अभी बता देना इंपॉर्टेंट है, द कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी मतलब क्या, ठीक है, कैरोटिड नाम का रिलेवेंस कैरोटीन से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जस्ट हैड इट्स स्पेलिंग कैरोटिड, आर्टरी है मतलब डेफिनेटली ब्लड सप्लाई करेगा, वेयर, द आंसर इज एनी रीजन अबव द हार्ट, हार्ट या फिर लिम्स के ऊपर का जो रीजन है और द अबव द थोरेसिक रीजन, इन रीजन को ब्लड सप्लाई करने का काम अगर कोई करता है तो दैट इज द कैरोटिड आर्टरी। अभी अगेन कैरोटिड आर्टरी की दो डिवीजन है, लाइक द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अभी ये मत सोचो कि लंग्स के केस में दो लंग्स थे तो ब्लड सप्लाई डिवाइड हुआ, ऊपर तो सिंगल हेड ही है फिर डिवाइड क्यों हो रहा है, द आंसर इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द इंटरनल ऑर्गन अबव हियर, और यहाँ पे एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ब्रेन। सो ब्रेन या ब्रेन के आजू बाजू का जो हिस्सा है वहां पे जो ब्लड सप्लाई हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एंड जो आपको हमें नॉर्मल ह्यूमन को दिखता है दैट इज द फेस, स्किन, नेक, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सो दिस वाज द फर्स्ट बोर्ड ऑफ बेसिक्स सेशन। इसके बाद में चलते हैं आगे की तरफ। ओके, बोर्ड पे क्या दिख रही है हेडिंग, अंजाइना पेक्टोरिस। डोंट गेट हैप्पियर, लेक्चर शुरू नहीं हुआ, अभी बेसिक्स से शुरू है, ध्यान से देखना है, कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेगा। सो अंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, हम अंजाइना पेक्टोरिस को बेसिकली व्हाट दिस डिसीज इज, ठीक है, ये समझ के लेंगे। अंजाइना पेक्टोरिस के बाद में वी विल गो ऑन टू द मायोकार्डियल इस्चेमिया, उसके बाद में हम जाएंगे हाइपरटेंशन पे, एंड देन आफ्टर द हाइपरटेंशन सेशन वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर ऑफ आवर टॉपिक्स, ठीक है। अभी इतना लेंदी प्रोसेस क्यों, डायरेक्टली लेक्चर पे क्यों नहीं जा रहे, आप एक बार ये सेशन ठीक से देख लो पूरा, यू गो थ्रू द बुक, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, लेक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बट डेफिनेटली लेक्चर विल बी देयर, ठीक है, फॉर हायर और द बेटर और द बेस्ट और द मोर देन बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। चलते हैं अंजाइना पेक्टोरिस की तरफ। व्हाट इट इज, कहाँ पे होता है और क्या टाइप से और क्या सिम्टम्स मिलते हैं, ये चार चीजों को इस पूरे बोर्ड पे हम समझ के लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अंजाइना पेक्टोरिस है क्या पहले, ठीक है, डिसीज है इतना पता है। अभी मोर प्रॉपरली अगर इसे बताना हो, सो अगेन मैं एक सिंपल स्टेटमेंट आपको देता हूं, अंजाइना पेक्टोरिस इज नॉट द रोल नंबर 1 इन कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। ये हम आगे और क्लियरली समझ के लेंगे क्यों। द इनिशियल प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज द डिक्रीज ब्लड फ्लो, जैसे कि हमने पहले देखा था, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा। होता क्या है कि जैसे ही ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है इट कॉजेस टिश्यू हाइपोक्सिया एंड इस्चेमिया।
टिश्यू हायपॉक्सिया मतलब क्या? ऑक्सिजन की कमी, ऑक्सिजनची कमतरता भासणे. देन इस्चेमिया, द टिश्यू इंजुरी. क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिड्यूस ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई कम होगा. इसेंशियल सर्वाइव करने के लिए जो इसेंशियल मटेरियल है उसका सप्लाई कम होगा. सो ऑब्वियसली दैट हार्ट टिश्यू, wherever the blood flow is getting decreased, that particular region or that particular area will undergo tissue hypoxia and ischemia. और इसका कॉन्सिक्वेंस आपको मिलेगा एंजाइना पेक्टोरिस के फॉर्म में. ठीक है. नाउ एंजाइना पेक्टोरिस अगर डेवलप होता है तो पर्सन विल फील द चेस्ट पेन और द टाइटनेस इन द चेस्ट. ठीक है. अभी हमें यहाँ से दिख के नहीं आता हार्ट इधर है क्या, इधर है क्या, इधर है. ठीक है. रफली वी नो दैट दिस इज द रीजन. बट यहाँ पे जब पेन हो रहा है तो ऐसे पॉइंट वाइज नहीं होता कि एग्जैक्टली ये पेन यहाँ पे लगा और यहाँ पे पेन हो रहा है. एक रीजन क्रिएट होता है पेन के लिए, उसे दैट्स व्हाई एक ब्रॉड टर्म यूज दैट इज द चेस्ट पेन. और उसके साथ में भी टाइटनेस इन द चेस्ट मीन्स दैट नॉर्मल ब्रीदिंग. ठीक है. हार्ट की एक नॉर्मल एक्टिविटी वो आप सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो. दैट टाइटनेस और दैट मतलब मूव नहीं, जकड़ जाना, मूव नहीं कर सकते. दैट रेफर्स टू द angina pectoris. Now this is also represented as the anginal attack or the attack of angina. और हम इसको हमेशा कंफ्यूज करते हैं इधर से, हार्ट अटैक से. ठीक है. दिस अटैक वर्ड इज कॉमन एट बोथ द प्लेसेस. ठीक है. सो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा anginal attack. Along with the chest pain, the other things which get disturbed are discomfort, that discomfort feeling in the jaw, in the neck, या यहाँ पे shoulders के ऊपर. ठीक है. That discomfort is associated with the angina pectoris. एक important blood vessel exist करती है हमारे one of the hands पर. ठीक है. हाथ पे एक important blood vessel है जो इससे related है, आपको वो ढूंढनी है. Now आफ्टर द टिश्यू हाइपोक्सिया एंड द इस्चेमिया, इसके बाद में स्टोरी और बढ़ती जाती है अगर यहीं पे आपने रोका नहीं तो. इट कुड टर्न इनटू मायोकार्डियल इस्चेमिया, बट इससे पहले इस्चेमिया विल कन्वर्ट इनटू द नेक्रोसिस. इट विल क्रिएट मायोकार्डियल इस्चेमिया और हार्ट अटैक. या फिर अगर ये जो टिश्यू हाइपोक्सिया या इस्चेमिया अगर कंडक्टिंग पाथवे के टिश्यू पर हो रही है, इट इज गोइंग टू क्रिएट योर कार्डियक एरिथमिया, दैट शॉर्ट सर्किट वाला डिसीज. सो ये था व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस. और मैंने इसके स्टार्ट में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि एंजाइना पेक्टोरिस इज नॉट द रोल नंबर 1 इन कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड नॉट इवन द लास्ट वन. शुरुआत यहाँ से होती है या हाइपरटेंशन के केस में कोई और रीजन हो सकता है, देन इस्चेमिया, हाइपोक्सिया, फिर एंजाइना पेक्टोरिस एंड देन या तो यो इधर एंड होगा या फिर इधर एंड होगा. एंजाइना पेक्टोरिस को कंट्रोल नहीं किया तो डेथ इज गोइंग टू बी देयर. ठीक है. बट यहाँ पे चांसेस एग्जिस्ट करते हैं. देयर आर सम टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस जिसको अगर आप प्रॉपरली रेस्ट करो, कुछ मेडिकेशंस प्रोवाइड करो तो इट इज गोइंग टू बी कंट्रोल इन अ लिमिटेड टाइम. हार्डली एक 5 से 10 मिनट का टाइम रहता है तकलीफ होते वक्त, तो आप पे कंट्रोल हो जाएगा. बट ये केस में यू हैव टू बी, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल मायोकार्डियल in case of heart attacks. Okay, so this was about our first question, what is angina pectoris. पहले डिसीज क्या है वो समझ लो. फ्रॉम द 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड और इन द 6th सेमेस्टर प्रॉब्लम क्या है चैप्टर का वो आपको समझना है, एंड देन यू शुड गो ऑन टू द मेडिकेशन. डायरेक्टली आप क्लासिफिकेशन से रीडिंग स्टार्ट कर देते हो तो आपको समझने में डिफिकल्ट जाएगा. अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. नाउ वेयर इट ऑकर्स, let me write. You have 3 or 4 options. Now according to the some students, heart, then heart, and then heart. ठीक है. The answer will be heart. Now angina pectoris heart से associated है, but at the same time we had already studied heart is a hollow organ. Angina pectoris
ये जो डायग्राम थी दैट 3 लेयर्स, 3 में से दैट सेकंड और थर्ड लेयर, दैट इज द पॉइंट वेयर दैट ischemia or tissue hypoxia is created. So that is the location of angina pectoris, where it occurs in the heart, and most probably it will be subendocardial region. Okay, so ये था subendocardial region का importance. Now we had answered the question 1. Question 2, अभी चलते हैं टाइप्स की तरफ. What are the types of angina pectoris? ठीक है, टाइप्स हर एक डिसीज के होते हैं. Now angina pectoris have 3 different types: the classical or stable angina, vasospastic angina, Prinzmetal angina, या फिर उसे और कह सकते हैं वेरिएंट angina. ये था सेकंड टाइप. थर्ड टाइप है somewhere unstable angina. इसको अनस्टेबल क्यों कहते हैं हम बाद में पढ़ेंगे. Discussing the first one, that is the classical or stable angina. अभी इसे समझने के लिए 2 इंपॉर्टेंट हिंट्स है. दूसरा, रूटीन या जेनेरिक नेम क्या है इसका? एफर्ट एंजाइना. और समझने के लिए ये छोटी. नाउ द पर्सन इज लिफ्टिंग 50 kg डेडलिफ्ट. ठीक है, सो क्लासिकल एंजाइना का एक इंपॉर्टेंट हिंट क्या है? व्हेन दैट ससेप्टिबल पेशेंट इज डूइंग मोर एक्सरसाइज. ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन के लेवल की रहती है और द नॉर्मल यंग एडल्ट पर्सन. सो उस वक्त, या फिर when that person is going through the heavy emotional stress, that susceptible person, so उस टाइम पे जो एक एंजाइनल अटैक क्रिएट होता है, या फिर इन कंडीशंस में, ये जो मेंशन की है, इस कंडीशंस में जो एंजाइना का अटैक क्रिएट होता है उसे कहेंगे हम क्लासिकल या फिर स्टेबल एंजाइना. नाउ थोड़ा फार्माकोलॉजिकली या फिर साइंटिफिकली इसे प्रेजेंट करते हैं. हियर coronary circulation fails to fulfill increased demand of heart. मतलब हार्ट जब एफर्ट ले रहा है either for exercise और emotional stress, उस वक्त हार्ट वॉल्स की जो डिमांड है ऑक्सीजन की या न्यूट्रिएंट्स की, वो पूरी नहीं होती, और उसके वजह से जो कैस्केड ऑफ कॉम्प्लिकेशन जनरेट होता है उसे हम कहते हैं क्लासिकल और द स्टेबल एंजाइना. नाउ अगर आप पेशेंट को थोड़ा सा शांत कर दो, एक्सरसाइज के केस में भी और इमोशंस के केस में भी, माइट बी इजीली वो सिचुएशन रिजॉल्व हो सकती है. नाउ अभी यहाँ पे कोरोनरी सर्कुलेशन फेल हो रहा है टू फुलफिल द इंक्रीज डिमांड, मीन्स ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या है? डिक्रीज ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो डिक्रीज क्यों होता है? अगर कोई वैस्कुलर डिसीज वहां पे हो. सो यहाँ पे if there is fixed obstacle to the blood flow, जो अथेरोस्क्लेरोसिस में होता है, या फिर fixed vascular condition is there, जो arteriosclerosis के कंडीशन में होती है. so there will be the failure of coronary circulation to optimize the efforts of heart. उस वक्त क्लासिकल एंजाइना आपको ऑब्जर्व होता है. so समझ में आया? एफर्ट लेते वक्त होता है, और क्यों होता है? if there is atherosclerosis or arteriosclerosis. चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ, वैसोस्पास्टिक और द प्रिंसमेटल और द वेरिएंट एंजाइना. अगेन यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है. द पर्सन इज स्लीपिंग एदर मॉर्निंग के 2 बजे या फिर रात के 3 बजे. ठीक है, सॉरी, इफ इट इज 2 AM और द 3 AM, उस वक्त जो होता है उसे कहते हैं वैसोस्पास्टिक एंजाइना. हर किसी को हो सकता है क्या? नहीं, unless and until there is a some blood flow issue. तो अभी है क्या? There is a localized coronary vasospasm. यहाँ पे क्या था? अथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. यहाँ पे क्या आ रहा है? वैसोस्पाज्म. बट और एक इंपॉर्टेंट चीज है, लोकलाइज्ड. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. मीन्स वैसोस्पाज्म के डिस्क्रिप्शन के वक्त मैंने बताया था, जो हमने यहाँ पे एनलिस्ट किए थे. वैसोस्पाज्म मतलब क्या? एबनॉर्मल रिएक्टिविटी ऑफ आर्टरी टुवर्ड द केमिकल स्टिमुलाई. अभी इसे कुछ एडजेक्टिव्स प्रेजेंट किए यहाँ पे. एब्रप्ट एबनॉर्मल रिएक्टिविटी, द ट्रांजिएंट एबनॉर्मल रिएक्टिविटी और अनकंट्रोल्ड रिएक्टिविटी.
मतलब एब्रप्ट मतलब सडनली या ज्यादा से ज्यादा होना, ट्रांजिएंट यानी कम देर के लिए होना, और अनकंट्रोल्ड यानी उस पर कंट्रोल नहीं, इतना ज्यादा ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन होना। सो ये सब आता है वैसोस्पाज्म। So in this case, because of this vasospasm, that anginal attack is developed. But this type, vasospastic or the Prince metal, is definitely not due to the increased or the oxygen demand case. ये क्यों होता है? इस वजह से। अभी ये वैसोस्पाज्म की ये कंडीशन क्यों आती है? Either due to the sympathetic overactivity. Sympathetic overactivity यानी एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन वाला, नॉर एड्रेनालिन वाला। सो साइकोलॉजिकली अगर देखें, व्हेन वी आर फीलिंग एड्रेनालिन रश, ज्यादा हद से ज्यादा एक्साइट होते हैं, तो हम मतलब मीन्स नॉर्मल पर्सन को सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी इतनी नहीं अफेक्ट करेगी। अगर वहां पे वैसोस्पास्टिक कंडीशन है और वो पर्सन अगर सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी दे रहा है, तो वहां पे डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है। Now, apart from sympathetic overactivity, the major reason is endothelial dysfunction. मैं दो वर्ड्स आपको बोल रहा हूँ जो आपको लिख के भी लेने हैं और आपको समझना भी है। एंडोथेलिन, एंडोथेलिन का रोल इन ब्लड वेसल फंक्शनिंग एंड दिस एंडोथेलियल वर्ड, ये समझना है आपको। होता क्या है कि जो कोरोनरी आर्टरी है, इमेजिन दिस पार्ट, आई थिंक यहाँ पे एक रेड कलर का एक सर्कल है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। So, in this segment, abnormally reactive hypertrophied segment is found. मतलब ये एक abnormally reactive है। hypertrophied यानी थोड़ा strong, जिसमें ज्यादा मैट्रिक्स है, जिसमें ज्यादा मटेरियल ऐड किया है, that is the hypertrophied segment. So ये uncontrollably constrict हो जाता है, तो blood flow आगे होगा क्या? Definitely no. But it is not arteriosclerosis, it is not atherosclerosis. ये abnormally रिएक्टिव इमिट एबनॉर्मली कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। सो ये कंडीशन है वैसोस्पाज्म की। सो होता क्या है कि देयर इज ड्रामेटिक रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो। नाउ आफ्टर दिस देयर इज अ जनरेशन ऑफ डिस्टल इस्चेमिया। इसका मीनिंग समझ लो, पहले ब्लड फ्लो में रिडक्शन हुआ, उसके वजह से डिस्टल इस्चेमिया, डिस्टल का मीनिंग अगर बता दूं इन शुद्ध मराठी, उगमस्थानापासून अति दुरावलेला, उसे कहते हैं डिस्टल। तो अगर ये रीजन में आप कंस्ट्रिक्शन कर रहे हो एबनॉर्मली, तो समवेयर यहाँ पे इस्चेमिया डेवलप होगा। आप बोल नहीं सकते कि अगर यहाँ पे मींस इन द एंडोकार्डियम दैट इस्चेमिया इज गोइंग टू डेवलप, ठीक है, तो उसका रीजन इतने दूर का मींस इपिकार्डियम में का कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यू कैन नॉट से दैट, ठीक है। वैसोस्पाज्म अगर डेवलप हो रहा है तो वो कौन सी ब्रांच में कब कहाँ पे ब्लड फ्लो पूरा रिड्यूस हो जाएगा, ये हम नहीं बोल सकते। सो ड्रामेटिक रिडक्शन इन ब्लड फ्लो एंड जनरेशन ऑफ डिस्टल इस्चेमिया, ये सब कब होता है? मोस्टली व्हेन दैट पर्सन इज फॉल, मींस सो गया है या फिर कुर्सी पे बैठ के आराम कर रहा है, ये तब होगा। सो दैट इज द वैसोस्पास्टिक और प्रिंस मेटल एंजाइना। ओके, नाउ आगे चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ, अनस्टेबल एंजाइना। हैंडराइटिंग इज इंडिकेटिंग, ठीक है, नीचे ठीक से लिखा है। थर्ड टाइप इज अनस्टेबल एंजाइना। अभी इसे अनस्टेबल क्यों कहते हैं? ये एक छोटी ड्राइंग है, एक आदमी है कुछ तो भी तोड़ रहा है। दिस इज द एक्स फैक्टर और द, डोंट गो इनटू द सीरियल, एक्स फैक्टर इन द सेंस कोई ऐसी XYZ चीज है जिसके वजह से अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक ब्रेक हो रहा है, वो पूरा मटेरियल बाहर निकल के आएगा और कोरोनरी सर्कुलेशन में आगे फ्लो होगा। सो रप्चर ऑफ अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक विल बी देयर, उसके वजह से क्या होगा? प्लेटलेट एग्रीगेशन, एज अ रिजल्ट देयर विल बी प्रोग्रेसिव ऑक्लूजन। फिक्स्ड ऑब्स्टैकल, लोकलाइज्ड, यहाँ पे ये मटेरियल तोड़ दो, ये कहाँ तक घूमते जाएंगे आगे बोल नहीं सकते, कहाँ कहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा बोल नहीं सकते, दैट्स व्हाई अनस्टेबल। सो ये तीन थे एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप्स। अभी इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है।
लोकलाइज्ड कोरोनरी वैसोस्पाज्म, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था, आर्टरी अनकंट्रोलेबली कंस्ट्रिक्ट हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टरी को रिलैक्स करना पड़ेगा। ये जो चीजें हैं which are responsible for that these are that chemical stimuli, इसे कंट्रोल करना होगा, बट मेन टारगेट विल बी टू रिलीव वैसोस्पाज्म। यहाँ पे आते हैं अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक एंड द प्लेटलेट एग्रीगेशन। सो यू हियर यू हैव टू यूज either those thrombolytic और द प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर काइंड ऑफ अ ड्रग, ठीक है, या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस को क्योर करने वाले ड्रग। और अगर यहाँ पे आएंगे तो योर टारगेट विल बी either atherosclerosis और arteriosclerosis। बट ये कब करना है, अंजाइना पेक्टोरिस के अटैक से पहले। अगर अंजाइना पेक्टोरिस का अटैक स्टार्ट हो जाता है तो आपको वो मेडिसिन देने पड़ेंगे जो आपके क्लासिफिकेशन में एनलिस्ट किए गए हैं। बेसिक्स क्लियर है? दैट्स गुड। बिफोर वी हैड डिस्कस्ड व्हाट इज मीन बाय एंजाइना, ठीक है, अंजाइना क्या है, कितने टाइप से, इट्स लोकेशन, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एसोसिएटेड विद द angina pectoris is how it can be detected, means its diagnosis. There are three options: ECG, stress test and biochemical markers detection. ECG का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके, जो चेस्ट का एक तरीके से मैपिंग होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का। सो यहाँ पे क्या करते हैं, यू हैव टू डिटेक्ट द टिश्यू एबनॉर्मेलिटी एदर इन फॉर्म ऑफ इस्चेमिया और इन फॉर्म ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। ईसीजी का मतलब ये नहीं है कि वोल्टेज काफी कम ज्यादा हो रहा है कौन से सेल पे या कौन से रीजन पे, वही डिटेक्ट करो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वोल्टेज अप एंड डाउन, दैट इरेगुलरिटी, यू कैन डिटेक्ट एन नंबर ऑफ थिंग्स, और उसमें से जो दो एनलिस्टेड है वो है इस्चेमिया और हाइपोक्सिया। सो ये हो गया द वे ऑफ डिटेक्टिंग द अंजाइना, द फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज स्ट्रेस टेस्ट। थोड़ा सा रिकॉल करो, अंजाइना का फर्स्ट टाइप कौन सा था, दैट वाज द स्टेबल अंजाइना। उसे हमने रूटीन और जेनेरिक वर्ड में क्या बोला था, एफर्ट अंजाइना, जब आप स्ट्रेस से गुजर रहे हो एदर एज अ फिजिकल एक्टिविटी और द इमोशनल स्ट्रेस। सो यहाँ पे डॉक्टर क्या करके आपको इमोशनल स्ट्रेस तो नहीं देंगे, ठीक है, ही विल से टू रन ऑन अ ट्रेडमिल, ठीक है, मतलब थोड़ी उछल कूद करने को बोलेंगे विद इन अ लिमिट। अगर ड्यूरिंग दैट फिजिकल एक्टिविटी अगर कहीं अप एंड डाउन ऑब्जर्व होता है कार्डियोग्राम में या फिर दैट स्टेथोस्कोप में, सो पेशेंट हैज बीन डिटेक्टेड विद द अंजाइना। ये हो गई स्ट्रेस टेस्ट। द नेक्स्ट वन दैट इज द बायोकेमिकल मार्कर्स। बायोकेमिकल मार्कर का मतलब क्या है, ब्लड फ्लो में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स फाउंड होना जो किसी डिसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन डिसीज देयर लेवल्स आर इंक्रीज्ड, पर्टिकुलरली देयर स्पेशलाइज्ड फॉर्म और समथिंग। नाउ यहाँ पे इन केस ऑफ angina pectoris और myocardial ischemia और coronary vascular disease, here one biochemical marker is usually found, और वो है troponin। ये एक प्रोटीन है which is associated with the muscle contraction process. Troponin के तीन सब टाइप्स है, each of them have specific role during the muscle contraction. अभी ट्रोपोनिन के तीन टाइप्स का है, ट्रोपोनिन I, troponin C, troponin T, ICT. In case of angina pectoris, that C and T form is of special importance for diagnosis. ठीक है, अगर ये दो फॉर्म्स ब्लड में डिटेक्ट हो जाते हैं तो इट इज द मार्कर और इट इज द इंडिकेटिव ऑफ एनी कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सो इट इज डिटेक्टेड व्हेन द angina pectoris has been gone through, मतलब पेशेंट को angina pectoris का अटैक आके गया है या फिर वो बहुत ज्यादा ससेप्टिबल हो चुका है। इन दोज कंडीशन दिस बायोकेमिकल मार्कर टेस्ट विल वर्क। सो ये सब था angina pectoris के बारे में। Now definitely ये पूरी डिटेल चीजें नहीं है, whether I have written here और back to the time वहाँ पे जो लिखा था ये पूरा डिटेल में नहीं है, but definitely it is sufficient to understand the angina pectoris chapter in your KDT, ठीक है। Now आगे चलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन की तरफ। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, याचा शब्दशः अर्थ काय होतो ते समजून घेऊयात। मायोकार्डियल का मतलब क्या है, इट इज एसोसिएटेड विद द मिडल लेयर ऑफ हार्ट वॉल,
और वो कौन सा था? दैट इज द मायोकार्डियम। अगला वर्ड क्या है? इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन का वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या आता है? स्मॉल लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेड टिश्यू। अभी ये इंडिकेट क्या कर रहे हैं? दोनों चीजें अगर मैं कंबाइन करता हूं, संधि, ठीक है, जो आप संस्कृत में ज्यादा यूज होता है, इट रिप्रेजेंट्स मींस दिस वन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स small localized area of dead tissue which is present in myocardium layer of heart wall. It is not the definition but it is the meaning of these two words. आइडिया आ गई? ये थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया बोलना, धीरे से बोलता हूं। मायोकार्डियल का मतलब हार्ट के एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्फ्रैक्शन का मतलब क्या है? स्मॉल लोकलाइज्ड एरिया ऑफ अ डेड टिश्यू। अब जब ये दोनों वर्ड में कंबाइन करता हूं तो उसका मीनिंग क्या आएगा कि हार्ट का एक ऐसा हिस्सा जहां पे डेड टिश्यू फाउंड होते हैं, उस प्रॉब्लम को, उस डिसीज को हम कहेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, और इसका जेनेरिक वर्ड है हार्ट अटैक। अगेन डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द एंजाइनल अटैक। सो चलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की तरफ। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज द इरिवर्सिबल डेथ, डेथ इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, ये एनिमेटेड मूवी नहीं है कि जिसमें डेथ रिवर्स कर दोगे। सो इट इज अ इरिवर्सिबल डेथ ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू, और इट इज सेकेंडरी टू प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ब्रैकेट में आप ब्लड सप्लाई भी मेंशन कर सकते हो। होता क्या है कि ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगा, जैसे हमने पहले बोला था, सारे मुसीबत की जड़ क्या है कि रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो। सो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, उसकी वजह से क्या हुआ? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आ गई। उसकी वजह से क्या हुआ? टिश्यू हाइपोक्सिया हुआ। टिश्यू हाइपोक्सिया के बाद में क्या हुआ? द डेथ ऑफ टिश्यू, ठीक है। इट इज द डेथ ऑफ हार्ट मसल। हार्ट मसल की यानी पूरे मसल डेड नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर छोटा सा हिस्सा जहां पे ब्लड का फ्लो कम हो चुका है। इट इज द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अभी इट इज एक्सपेक्टेड कि आप इस पैराग्राफ के और इस पैराग्राफ के बीच में जो गैप है वो आप फिलअप करो। नाउ हाउ इट इज डायग्नोस्ड? अगेन समवेयर पैरेलल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड टेस्ट फॉर द बायोकेमिकल मार्कर, एग्जैक्टली सेम रहेगा, वहां पे जो है यहीं पे आएगा। बट ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, इट इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। स्ट्रेस टेस्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फिजिकल एग्जामिनेशन, बट यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेंगे या फिर कुछ एक इजी ग्रेड इक्विपमेंट से जो आपके हार्ट के एक्टिविटी का साउंड इजीली डिटेक्ट करते हैं। आई एम नॉट एबल टू पिक अप दैट एग्जैक्ट वर्ड, सो दैट साउंड एक्टिविटी are detected, and on the basis of it is determined whether that patient has been gone through or susceptible to the myocardial infarction or not. ये था मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। इसके बाद में जो सेक्शन हम शुरू करने वाले हैं वो है हाइपरटेंशन। Till now we had discussed angina pectoris, myocardial infarction, and now comes the Thanos, the hypertension, ठीक है। पूरा आपका कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी कहीं पे खत्म होता है तो ये चीज है। सो अगर इसका इतना इंपॉर्टेंस है तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका है क्या पूरा स्ट्रक्चर। ज्यादा से ज्यादा आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी स्टडी कि ब्लड प्रेशर क्या है, क्या वैल्यूज है, कौन से टाइप्स है, बट जो इनसाइड डिटेल्स है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द हाइपरटेंशन, वो कैसे हाइपरटेंशन रिड्यूस कम करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, हाउ योर मेडिसिन्स गोइंग टू यूज दिस फैक्टर टू मैनिपुलेट द हाइपरटेंशन, दिस थिंग्स आर नॉट डिस्कस्ड देयर, ठीक है। सो अभी ये आपको समझ के लेना है। अब तक किसी ने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया होगा, आई एम अगेन सेइंग, अगर किया होगा तो 0 मिनट से फिर से देखो। सुनाओ, हाइपरटेंशन डिफाइंड इन अ सिंगल लाइन है क्या, ठीक है। हाइपरटेंशन इंस्टेड ऑफ हाइपरटेंशन स्टार्टिंग विद द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज द नॉर्मली फोर्स और द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर ब्लड वेसल्स। अभी जब मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली आई विल इंक्लूड बोथ आर्टरीज आल्सो एंड वेन्स आल्सो। यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है कि आर्टरी में से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वही प्रेशर क्रिएट करेगा। डेफिनेटली ब्लड in both artery and vein will create a pressure that will be known as the blood pressure। और ये चीज जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो जो कंडीशन, वो जो हाइयर प्रेशर एग्जिस्ट होता है उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। यहाँ पे
फिजिक्स एग्जिस्ट करता है, द टेंशन ओवर दैट थ्रेड और द स्ट्रिंग ऑफ मसल, दैट मसल और द थ्रेड इज द ब्लड वेसल। तो उस पे जब आप एक लिमिट से ज्यादा टेंशन एक्सर्ट करते हो, दैट इज द हाइपरटेंशन। कम बैक टू द सिंगल लाइन। ब्लड प्रेशर को सिंगल लाइन में कैसे डिफाइन किया? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड और द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। समझ में आया? इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट हो रही है? टेक अ पॉज। ओके, नाउ हमने ब्लड प्रेशर क्या है इसका बेसिक आइडिया ले लिया। अभी चलते हैं आगे दो स्टेटमेंट दिए उनके तरफ। ठीक है, अभी थोड़ा लेवल अप करना है और यहाँ पे और ज्यादा अप करना है। यहाँ पे आप सेकंड ईयर के लेवल पे हो, यहाँ पे आप थर्ड ईयर के लेवल पे हो और यहाँ पे आप डायरेक्टली अल्ट्रा लेवल पे जाओगे। ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट व्हेन द हार्ट इज अंडरगोइंग द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। मतलब इसका मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट मतलब थोड़ा ज्यादा रहता है अबव द नॉर्मल व्हेन हार्ट इज गोइंग द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। मतलब हार्ट का जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसे कहते हैं हम सिस्टोल। सो व्हेन हार्ट इज गोइंग थ्रू द सिस्टोल, एट दैट टाइम ब्लड प्रेशर इज हायर। क्यों? टेल मी। अभी इमेजिन करो कि एक ट्यूब है, ठीक है? आई एम नॉट डॉक्टर स्ट्रेंज टू प्रेजेंट यू ट्यूब हियर, ठीक है? तो एक ट्यूब है, इमेजिन करो। अभी जब पिचकारी से पानी मतलब ऑलरेडी डाल दिया है हमने, तो वो एक स्टैग्नेंट कंडीशन में समवेयर थोड़ा सा रुका हुआ है, तो वो इतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा या फिर वो रेजिस्टेंस भी मतलब उनका एक ना इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इफ इट इज इन अ स्टैग्नेंट कंडीशन। बट मैं क्या कर रहा हूँ, अब वो ट्यूब को मैंने पिचकारी से कनेक्ट किया, नाउ आई एम पुशिंग मोर ब्लड इनसाइड इट, सो डेफिनेटली एक जोर का धक्का बैठेगा। जैसे ही धक्का बैठेगा समवेयर इंटरेक्शन बिटवीन द वॉल्स ऑफ आर्टरी एंड ब्लड विल बी देयर, ठीक है? सो उस वक्त एक लेवल जो नॉर्मल लेवल रहती है उससे थोड़ा ज्यादा ब्लड प्रेशर सेंस होता है। आपको लॉजिकली ये समझ के लेना होगा। सो हियर द ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट व्हेन द हार्ट इज अंडरगोइंग द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम उन वेसल्स में ऐड कर रहे हो, ठीक है? उसके वजह से वो जो पूरा सर्किट है उसका कंटेंट थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उस पूरे ब्लड वेसल्स के सर्किट पे लोड क्रिएट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई द ब्लड प्रेशर इज हायर। और इस ब्लड प्रेशर को हम कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हमारे पास दो टाइप के ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज का ब्लड प्रेशर जब आप बोलोगे तो दैट इज द आर्टेरियोलर ब्लड प्रेशर। जब आप वेन्स के प्रेशर की बात करोगे तो आप कहेंगे वीनस प्रेशर। अभी वो हो गया आर्टरी और वेन के अकॉर्डिंग, उन्हें बाजू कर देते। कम टू द हार्ट प्रोसेस। हार्ट की दो प्रोसेस है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अभी सिस्टोल के वक्त दोनों भी वेसल जो प्रेशर फील करते उन्हें कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एंड सेम when heart is going through the relaxation process, that is the diastolic blood pressure. but यहाँ पे difference है, blood pressure is relatively low when heart is undergoing the relaxation process. क्यों? क्योंकि blood flow stagnant हो गया है, there will be no more resistance, no more exertion, no more घर्षण, so that's why the blood pressure levels will be somewhere fall down and it is known as the diastolic. सो एक चीज आपको क्लियर हो गई है, सिस्टोलिक बीपी ज्यादा रहता है, डायस्टोलिक बीपी कम रहता है। नाउ अभी आइए यहाँ पे, व्हाट आई हैव रिटन, द सिस्टोलिक बीपी इज हायर देन द डायस्टोलिक बीपी। जब आप ब्लड प्रेशर रिपोर्ट करते हो कहीं पे लिखते हो, either in your practical book or in the medical report of any person, it is written like that. This quantity indicates the systolic BP, this quantity indicates the diastolic BP. जो ब्लू कलर में है वो सिस्टोलिक बीपी रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स द डायस्टोलिक बीपी, एंड नोबडी इज गोइंग टू डू फास्ट फॉरवर्ड। अभी व्हेन जब आप कहते हैं कि हाइपरटेंशन है, हाई बीपी हुआ है, ठीक है, लो बीपी के वैल्यूज अलग है, यहाँ पे हाई बीपी को आपको प्रेजेंट किया क्योंकि हमारा चैप्टर हाइपरटेंशन रहने वाला है, हाइपोटेंशन नहीं है। हाई बीपी कब होगा? व्हेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वैल्यू विल बी 140 or above and diastolic blood pressure value will be 90 or above. ये कंडीशन जब एक्सीड हो जाती है तो उस वक्त जो वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है उसे आप कहेंगे हाइपरटेंशन। नाउ
देयर आर n number of types, n number of ways to classify the hypertension, but सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे दो टाइप्स मेंशन किए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब वो नहीं कि जो चौथी क्लास में आता है, और सेकेंडरी मीन्स जो 10वीं तक आता है, नॉट दैट। प्राइमरी मीन्स जब आपकी उम्र बढ़ती है और बढ़ती उम्र के वजह से जब आपकी बॉडी की पाइपलाइंस, ट्यूबिंग्स, इंजन सब डाउन होने लगता है, तो वो जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसके वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसे कहेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। बट इंजन रन करते वक्त कहीं पे गाड़ी ठोक दी, लिवर फेल हो गया, या फिर किडनी फेल हो गई, या फिर कुछ सीरियस इन्फेक्शन हो गया, या कहीं पे कुछ डैमेज हो गया, उसके वजह से उसके बाद में जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे कहेंगे आप सेकेंडरी हाइपरटेंशन। यानी मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, ओल्ड एज पेशेंट के केस में दे आर अंडरगोइंग सम सर्जरी, बट सर्जरी के बाद में सडनली वो एक नया डिसीज फेस करने लगते हैं, या फिर कहे कि दाढ़ किडली, ठीक है, योर टिथ, मतलब वो इंटेंशनली आप रिमूव करते हैं, बट रिमूव करते वक्त नंबर ऑफ क्रैनियल आर्टरी, क्रैनियल नर्व्स का सर्किट कहीं पे आप छेड़ देते हो, तो उस वक्त उसके बाद में माइट बी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया या एन नंबर ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क हो जाते हैं अगर गलती हो गई तो। सो उस वक्त जो मेडिकल कंडीशन रहती है उसे आप कहेंगे कि सेकेंडरी। सेम इज फॉर द ब्लड प्रेशर ऑल्सो। जब आप नॉर्मल प्रोसेस से जा रहे हो, कहीं और प्रॉब्लम होता है, उसके वजह से कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन इन फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन डेवलप होते हैं, दैट विल बी द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इजी है। नाउ यहां तक सब इजी था, अभी चलते हैं आगे। अगर ये फैक्टर्स आप ठीक से समझते हो तो देन only you will be able to understand the hypertension topic from the KDT or from my lecture. पहला फैक्टर है कार्डियक आउटपुट। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग या नॉट द टर्म्स। कार्डियक आउटपुट पहला फैक्टर रहेगा। एवरीवन नोज व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट। एक बार पंप होने के बाद में जितनी क्वांटिटी इजेक्ट होती है उसे कहेंगे कार्डियक आउटपुट इन अ मिनट। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, या फिर इसे अलग टर्मिनोलॉजी है पेरिफेरल वैस्कुलर resistance. The third one is volume and viscosity of blood. Volume of blood आप imagine कर सकते हो, viscosity of blood आप imagine कर सकते हो, and the ending one is the elasticity of blood vessel. Actually ये 5 है, but blood के related होने की वजह से volume and viscosity को मैंने combine कर लिया। चलते हैं फर्स्ट फैक्टर की तरफ, that is the cardiac output. Cardiac output क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए, amount of blood pumped out of heart in a minute। ठीक है, एक सिंपल डेफिनेशन प्रेजेंट की है। अभी इस डेफिनेशन में कुछ मैथमेटिकल टर्म्स ऐड किए, क्वांटिटी वाले टर्म्स। अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी मेजर्ड इन लीटर पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट पर मिनट। दो टर्म्स है, लीटर एंड पर मिनट। मीन्स जो पंपिंग आउट करने की एक्टिविटी वो हार्ट एक मिनट में कितनी बार कर रहा है, ठीक है, हाउ मेनी दैट एक्टिविटी इज गोइंग ऑन पर मिनट, वो यहाँ पे आएगी। और जो क्वांटिटी ब्लड की पंप आउट हो रही है टोटल, दैट विल बी रिटन हियर इन लीटर्स। सो लीटर मल्टीप्लाइड बाय पर मिनट, सो योर कार्डियक आउटपुट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स लीटर पर मिनट। अभी इसको हम टर्म्स देते हैं, योर लीटर is nothing but the stroke volume and your per minute term is nothing but the heart rate. So cardiac output का फॉर्मूला क्या हुआ, stroke volume multiplied by heart rate। और इसे घुमा फिरा कर इतना प्रेजेंट किया क्योंकि सिंपली स्ट्रोक वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर्स और हार्ट रेट का यूनिट होता है पर मिनट। समझ में आया? नाउ सो कार्डियक आउटपुट का इक्वेशन क्या रहेगा, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय लीटर। नाउ हम पढ़ क्या रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। अभी कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ब्लड प्रेशर। इसका मतलब जितना कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आते हैं यहाँ पे, ये जितना बढ़ेगा ये उतना बढ़ेगा। अभी कार्डियक आउटपुट कब बढ़ेगा, व्हेन इफ दिस और दिस टर्म और बोथ दिस टर्म आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, तब डेफिनेटली कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और उसके साथ में ही ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। But if you have done opposite thing, either you have reduced this or both, cardiac output will be decreased and blood pressure will be decreased. अभी आते हैं
CHF की तरफ। मैंने अंजाइना पेक्टोरिस बताया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बताया, ठीक है। हम हाइपरटेंशन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन बीच में एंट्री किसकी हुई? CHF की, ठीक है। यानी आप 2020 वाले थैनोस को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2012 वाला थैनोस बीच में से आ गया, ठीक है, लाइक दैट। सो यहाँ पे CHF का काम क्या है? CHF का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, इट इज कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। मैंने कंजेस्टिव को बाजू को निकाल दिया, दो वर्ड्स रहते हैं, हार्ट फेल्यूर यानी हार्ट फेल हो रहा है। हार्ट फेल हो रहा है यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस रुका रहा है क्या? नहीं, इट इज नॉट एबल टू पंप आउट ऑल द ब्लड एंड मीट द ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इन फॉर्म ऑफ ब्लड। मतलब हार्ट में उतनी, मतलब हार्ट के वॉल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही क्या वो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर सके। ये प्रॉब्लम होता है हार्ट फेल्यूर के केस में और द कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के केस में। अभी इसके मतलब इसका मतलब क्या है? हार्ट अगर पूरा ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, मींस इसका स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। उसके वजह से क्या होता है कि हार्ट में इन दैट हॉलो ऑर्गन ब्लड रह जाता है वहीं पे। सो अब एक सिस्टोल हो गया, दूसरा डायस्टोल आया, डायस्टोल के बाद में रिसीव किया ब्लड, यानी जो टोटल क्वांटिटी वो थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। सो वहां पे एक टर्म आती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। 1 मिनट। दिस इज द सिस्टोल। सिस्टोल होने के बाद में एक्स अमाउंट वहीं पे रह गई थी। सिस्टोल के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? डायस्टोल। डायस्टोल ने वाई अमाउंट ऐड की, ठीक है। सो योर टोटल वॉल्यूम विल बी एक्स प्लस वाई, और ये जो एक्स प्लस वाई क्वांटिटी रहती है उसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अभी इस डिसीज के केस में क्या होता है, वक्त के साथ दिस एक्स वैल्यू गेट्स इंक्रीज्ड। जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वाई शायद कांस्टेंट भी रह जाए। तो होगा क्या रिजल्ट? देयर विल बी रूटीन इंक्रीज इन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी डायस्टोल जब एंड हो रहा है तो उस वक्त वेंट्रिकल्स में जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड रह जाती है उसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और CHF के केस में ये क्वांटिटी वक्त दर वक्त बढ़ते जाती है। इसे हम CHF में और देखेंगे, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो इतना देख लो, सिर्फ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीजेस। अभी मैंने आपको बताया था कि जब डायस्टोल की प्रोसेस होती है तब एट्रिया पे बैरो रिसेप्टर एक्टिव होते हैं और वेंट्रिकल्स पे सार्कोमियर रिसेप्टर्स, सार्कोमियर टिश्यू स्ट्रेच होता है। दैट स्ट्रेच वर्ड जिसे मैंने बहुत ज्यादा वहां पे स्ट्रेच किया था। सो हियर प्रेशर इज सेंस्ड। उसके वजह से क्या होगा? योर सिंपैथेटिक सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड। सिंपैथेटिक सिस्टम का काम क्या है? हार्ट रेट इंक्रीज करना, ठीक है, एंड force also, but because of a problem the force is not generated here but only heart rate is increased। अभी सिर्फ ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, ये फैक्टर एज इट इज रह रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। सो हार्ट रेट बढ़ता है, उसके वजह से कार्डियक वर्क तो बढ़ रहा है बट कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज नथिंग बट फेलिंग हार्ट। अभी आते हैं फिर से हाइपरटेंशन की तरफ। हाइपरटेंशन में इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस इतना ही है कि जब आप इन दोनों में से कोई एक चीज बढ़ाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ना है, बट ये साइड बाय साइड CHF से पैरेलल चलता है। सो दैट्स व्हाई दिस स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ CHF। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अभी इन 3 पॉइंट्स को मैं बोर्ड पे प्रेजेंट नहीं करूंगा, आपको ओरली बताता हूं, ध्यान देके सुनना, ठीक है। भविष्यवाणी एक बार ही होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको TPR बढ़ने वाला है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अभी जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जब आप ब्लड हार्ट के बाहर पंप करते हो, वो ब्लड फ्लो हो रहा है पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो जो रेजिस्टेंस ब्लड फेस करता है, ठीक है, और जो फ्लो को अपोज होता है उस वक्त उसे कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। नाउ इमेजिन कि आपके पास पाइपलाइन है एक, ठीक है। अब ये पूरा खेल पाइपलाइन का ही है, ठीक है। नाउ डोंट से मी कि सर बार बार आके जाके पाइपलाइन पे क्यों आ रहे हैं आज, ठीक है, ये चैप्टर उसी से डील करता है। तो जो
ट्यूबिंग है और द पाइपलाइन दैट इज द ब्लड वेसल, उसका डायमीटर आपने बढ़ा दिया, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली जो रेजिस्टेंस, जो अपोज, ये चीजें जो हो रही थी वो कम हो जाती। बट अगर आप पाइपलाइन या ट्यूबिंग या ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम करते हो तो उस वक्त क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंटर कर रहे हैं, दैट इज वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट पार्ट में इसे और डिटेल में देखेंगे। नाउ व्हेन वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑकर्स, ठीक है, अभी ऐसा समझो ये आपके आर्टरी का ये ओरिजिनल डायमीटर है, बट नाउ इट इज कंस्ट्रिक्टेड। ये इतनी डायमीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट थी ब्लड फ्लो के लिए, बट अब ये कंस्ट्रिक्ट होके इतने डायमीटर पे आ गया है। सो ऑब्वियसली वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा फ्लो के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। सो ऑटोमेटिकली विद द वैसोकंस्ट्रिक्शन दिस क्वांटिटी इंक्रीजेस। नाउ अभी इमेजिन करो कि ये नॉर्मल डायमीटर था और हो गया वैसोडाइलेशन, यहाँ पे रेजिस्टेंस बचेगा? ऑब्वियसली नो। सो विद द वैसोडाइलेशन द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीजेस। सीधे सीधे इस वर्ड पे फोकस करना है। टीपीआर या सिस्टेमिक वैस्कुलर या पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इट इज अपोज टू द ब्लड फ्लो, ठीक है। और ये चीज डायरेक्टली रिलेटेड है ब्लड प्रेशर से। आप जितना ये वैल्यू बढ़ाओगे उतनी ये वैल्यू बढ़नी है, जितनी ये वैल्यू कम करोगे उतनी ये वैल्यू कम होनी है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हियर, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये इससे रिलेट होगा। अभी ये जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे इट इज नथिंग बट द प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द वेसल वॉल। जब आप ब्लड प्रेशर ये बोलते हो तो यू हैव टू कंसीडर द ब्लड वेसल, एंड व्हेन यू आर saying the peripheral resistance, it recording stop झाली आहे सर। when you are saying the blood pressure, आपको vessels को कंसीडर करना है, प्रेशर exerted by blood against the vessel। और जब आप रेजिस्टेंस की बात करते हो तो इट इज द that oppose experienced by blood itself while flowing, ठीक है। सो एक ही कॉइन के अपोजिट साइड है, गॉट इट। नाउ वॉल्यूम एंड विस्कोसिटी, ये समझने में बहुत इजी है। ये इतना नॉर्मल डायमीटर है ब्लड वेसल्स का, यहाँ पे सपोज 50 ml आराम से फ्लो हो सकता है, ठीक है। अभी इंस्टेड ऑफ 50 ml आपने अगर ऐड किया 70 ml, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इजियर। सो जैसे ही वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ेगा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अभी ये वॉल्यूम बढ़ता कब है, ठीक है, व्हेन salt intake is higher or when salt water intake is higher or when salt water is retained। मैंने तीन चीजें बताई, या तो एक ज्यादा हो रहा है या फिर 1+1 ये ज्यादा हो रहा है, या फिर आप इसे बाहर नहीं जाने दे रहे हो। ये जब होता है तब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड दिस कॉजेज द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। अभी इमेजिन करो कि एक आपके पास ट्यूब है, उस ट्यूब में से आपको पानी करके बाहर ये करना है, और अभी उसे पानी को रिप्लेस करो हनी से, विल इट बी पॉसिबल? नो। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल था अंदर की उसकी विस्कोसिटी हद से बहुत ज्यादा आपने बढ़ा दी। तो ब्लड के केस में भी वही होता है, जब आप ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ाते हो, यहाँ पे ब्लड को रिप्लेस नहीं करना है हनी से, ठीक है, ब्लड की विस्कोसिटी एक नॉर्मल लेवल से थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इन दैट केस ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्रीज। अभी ऐसा होता कब है? दिस विस्कोसिटी इंक्रीजेस व्हेन प्लाज्मा प्रोटीन्स क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड, उस केस में विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। आखिरी के पॉइंट की तरफ आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग में, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल। It is your normal blood vessel, it is constricted blood vessel, it is dilated blood vessels। In the normal human vessel ये चीजें साइड बाय साइड कंटिन्यूअसली होती रहती है, क्योंकि आपका ब्लड वॉल्यूम ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, एक रेंज रहती है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। उस ब्लड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग
आपके ब्लड वेसल की साइज चेंज होते रहती है। फर्स्ट पॉइंट हुआ, समझ में आया? अभी सपोज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, ठीक है, या फिर तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो चेंज इन द साइज है बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस वेसल, ये कम हो गई है, ये ना तो ज्यादा इधर जाएगा ना तो ज्यादा इधर जाएगा, तो उस वक्त प्रॉब्लम क्या होता है, देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। अभी इस पे सोल्यूशन ये मत निकालो कि सर हम ब्लड कम कर देते, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ लॉस इन द इलास्टिसिटी, blood pressure increases. And now we will move to the details of vasoconstriction, vasodilation and its relative terms. हम कौन से चैप्टर में हैं? हम हाइपरटेंशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ स्टडीइंग द हाइपरटेंशन और द रिलेवेंट प्रोसेस, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, लाइक जो यहाँ पे आने वाला है, सेकंड वन यहाँ पे आने वाला है, और स्टार्ट हम अभी करेंगे इन दो टर्म्स से, वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड द वैसोडाइलेशन, ठीक है। रिलैक्स रहो, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मत क्रिएट करो कि सर एग्जैक्टली पढ़ा क्या रहे, बेसिक्स पढ़ा रहे कि चैप्टर पढ़ा रहे। मैं जस्ट उसमें से जो प्रॉब्लम है दैट प्रॉब्लम पिक करके आपको इस सेशन में प्रेजेंट कर रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या था और उसका सोल्यूशन क्या है। हम सोल्यूशन कैसे अप्लाई करेंगे ये मेडिसिन में देखेंगे। वैसोकंस्ट्रिक्शन लॉजिकल है, ब्लड वेसल्स और उनका कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज द वैसोकंस्ट्रिक्शन। अपने आप तो होगा नहीं, कुछ चीजें लगेंगी, ठीक है। देन होता क्या है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा अभी भी कि वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या है क्या नहीं, तो आपको श्योरली पाइप लगेंगे साथ में, ठीक है, रबर पाइप, देन और सलाइन की ट्यूब जो रहती है हमारी वो एक, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ के लेना है तो ब्लड फ्लो डिक्रीजेस टू द ऑर्गन। पहले क्या हुआ, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया। अभी ये समझ के लेते हैं। नाउ जस्ट अ मिनट ओनली, ओके, आई हैव दिस। ये एक पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है सपोज 10 ml पर मिनट की, इसकी कैपेसिटी है 5 ml पर मिनट में। मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया टू दिस लेवल, यानी 10 ml पर मिनट की कैपेसिटी रिड्यूस हुई अप टू द 5 ml पर मिनट, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली विद द नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड फ्लो डिक्रीजेस टू द ऑर्गन। नाउ ये था आपका नॉर्मल वेसल और ये कंस्ट्रिक्ट होके इतना सा गया, तो ऑटोमेटिकली इस दोनों में से ब्लड फ्लो कहाँ पे ज्यादा होगा, इन द नॉर्मल वेसल, और कम कहाँ पे होगा, इन द कंस्ट्रिक्टेड वेसल, ठीक है। तो होता क्या है, इसके वजह से यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट लिखा है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस वन इज ब्लड इज रिटेन टू वैस्कुलर कंपार्टमेंट। कैपिलरी पता है आपको, स्मॉलेस्ट टाइनी वेसल जिसके अक्रॉस by the process of your diffusion osmosis मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। जब आप कंस्ट्रिक्ट करोगे ब्लड वेसल जिसमें कैपिलरीज भी इन्वॉल्व होती है एंड तक, ठीक है, नॉट यूनिफॉर्मली बट समवेयर इट इज इन्वॉल्व, तो जो मटेरियल का एक्सचेंज है वो कम हो जाता है और उसके वजह से ब्लड मीन्स इंक्लूडिंग ऑल द कंटेंट ऑफ ब्लड दैट इज रिटेन टू द वैस्कुलर कंपार्टमेंट, और वैस्कुलर कंपार्टमेंट का मतलब आपकी ब्लड वेसल, यानी इसके बाहर कोई नहीं जाएगा, सारे दरवाजे पैक। सो चलते रिटर्न जाते हैं, यहाँ पे ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन डिक्रीजेस, ठीक है, क्यों हो रहा है, वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से, मींस रिडक्शन इन द इंटरनल डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। सो जैसे हमने बोला था कि whenever you are going to decrease the blood flow, it is definitely create some problem. So blood flow decrease होगा, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगी। सो ये चीज है वैसोस्पाज्म। वैसोस्पाज्म में एक्सप्लेनेशन क्या दिया था, एबनॉर्मल एब्रप्ट वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, मतलब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रही थी टुवर्ड द
पर्टिकुलर और द एनी केमिकल स्टिमुलाई। सो यहाँ पे उसका रिलेवेंस आता है। वैसोस्पाज्म मीन्स क्या, थोड़ा ज्यादा ग्रेड का वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, उसके वजह से ब्लड फ्लो टू द टिश्यू ऑफ द हार्ट ऑटोमेटिकली और मैक्सिमम लेवल तक डिक्रीज होता है और एज अ रिजल्ट एंजाइना पेक्टोरिस ट्रिगर होता है। सो ये था वैसोकंस्ट्रिक्शन और उसका आगे का कॉन्सिक्वेंस। हर बार नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ वैसोस्पास्टिक कंडीशन। वैसोकंस्ट्रिक्शन के अपोजिट है इंक्रीज इन द इंटरनल डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल अगेन कम बैक टू दिस पॉइंट, ये था नॉर्मल वाला, ये है डायलेटेड वाला। 5 ml की कैपेसिटी, 10 ml की कैपेसिटी, डायलेट हो रहा है तब 5 ml से कैपेसिटी इंक्रीज होती है अप टू द 10 ml, मींस इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। सो प्रोसेस जो वैसोकंस्ट्रिक्शन से यहाँ जा रही थी, नाउ इट विल बी लाइक दिस, योर नॉर्मल वेसल एंड योर डायलेटेड वेसल। इसके वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो। अभी मीन्स अगर आप एंजाइना पेक्टोरिस के केस में नॉर्मल ब्लड वेसल या कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हो तो ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा टू द ऑर्गन एंड ऑटोमेटिकली इट विल बी परफ्यूज्ड, उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा एंड दैट पेन और द हाइपोक्सिया कंडीशन और द इस्चेमिया कंडीशन विल बी रिजॉल्व। ओके, नाउ अभी एक पॉइंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था ब्लड इज रिटेन टू द वैस्कुलर कंपार्टमेंट मींस नो मोर एक्सचेंज। अभी हमने इसके अपोजिट किया यहाँ पे वैसोडाइलेशन, देयर विल बी मैक्सिमम एक्सचेंज, मटेरियल एक्सचेंज होगा, उसके साथ में वाटर भी जाएगा उसके साथ, ठीक है। सो वाटर और मटेरियल जा रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो सिस्टेमिक कंपार्टमेंट या वैस्कुलर कंपार्टमेंट है वहां पे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, एंड दिस ब्लड वॉल्यूम विल मूव टू द पेरीफेरी या फिर इसे कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो ज्यादा जाएगा। ये कब होगा, इन केस ऑफ वैसोडाइलेशन। नाउ जब आप कोई ड्रग दे रहे हो, if that material is doing this process, that is known as the vasoconstrictor, and if your material is doing these things, it will be known as the vasodilator. अगर आप आर्टरीज का कंस्ट्रिक्शन कर रहे हो तो आर्टेरियोलर वैसोकंस्ट्रिक्शन, वेन्स का कर रहे हो तो वेनस कंस्ट्रिक्शन, अगर आप आर्टरीज का डायलेशन कर रहे हो तो आर्टेरियोलर डायलेशन, इट इज वेन्स, इट इज अ वेनो डायलेशन। इतना समझ में आया? एंड if you are doing both it will be the mixed activity. Take a pause. ये सब मैंने बताया वेन्स के वेसल्स के कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन के बारे में। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से प्ले करके देखो। कम टू द बिग साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ज्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे अगर आप ठीक से समझ लेते हो इन दो पार्ट्स को, सो मेजॉरिटी ऑफ कंसेप्ट्स फ्रॉम द फार्माकोलॉजी ऑटोमेटिकली आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, एक्सेप्ट अरिथमिया, वो शॉर्ट सर्किट वाला डिसीज है, उसको बाजू निकाल दो थोड़ी देर के लिए। सो दिस थिंग, सिस्टोल डायस्टोल क्या पता है? सिस्टोल डायस्टोल याद आ रहा है क्या है? ऑब्वियसली यस, याद आता होगा। नाउ वो हार्ट की स्क्वायर वाली इमेज, यस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये राइट एट्रियम में आता है, ठीक है, या फिर सिंपली कहे कि अभी हार्ट में आता है। कहाँ से आएगा, मींस कौन ला के देगा? इट विल बी वेन्स। और ये कब आता है? व्हेन द डायस्टोल प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीजें स्किप की है। वी आर डायरेक्टली कंसिडरिंग द लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड का पार्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? लंग से आता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड रहता है। नाउ वेन्स ब्लड ला के देगा, ठीक है, एट्रियम को, एट्रियम में से वेंट्रिकल्स में जाएगा, लेकिन कब? जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल प्रोसेस में रहेंगे तब। सो दिस थिंग इज नथिंग बट द वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रोसेस, ठीक है, ब्लड फिल हो रहा है। ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स ओनली। लेफ्ट वेंट्रिकल में से डायस्टोल खत्म हो गया, ठीक है, अभी डायस्टोल पूरा फुल गया गुब्बारा, ब्लड भी आ गया पूरा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? दैट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन, आगे भी पंप करना है हमें ब्लड। सो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल
systole process will start. Blood will be pumped into the arteries so as to complete the systemic circulation. Now अभी आते हैं हाइपरटेंशन से रिलेवेंट टर्म्स की तरफ. During the ventricular filling process, a pressure or stretch experienced by sarcomere tissue. ये मैंने आपको अच्छे से बताया था 2 बार. It is the 3rd time in this lecture. This term is coming again. A pressure or stretch experienced by sarcomere muscle tissue. ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं जनरली? वेंट्रिकल्स पे, और उसपे से भी मोर स्पेसिफिकली अगर कहे तो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. Experienced by sarcomere due to filling of blood is called as वेंट्रिकुलर फिलिंग के वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे कहते हैं प्रीलोड. ये प्रीलोड की, जब हम प्रीलोड को स्टडी करेंगे तब ये पार्ट पूरा इंक्लूड होगा. मींस दिस वन एंड दिस वन, इसके पहले की चीज है. ठीक है. प्रीलोड का मतलब क्या है? व्हेन द प्रेशर और स्ट्रेच एक्सपीरियंस्ड बाय सार्कोमियर ड्यू टू द filling of blood is called as the preload. Now diastole को imagine करो, ये maximum diastolic. Now this diastolic process is going on. अभी इसमें से क्या होता है कि ये जितना स्ट्रेच करोगे आप मैक्सिमम फिलअप करने के लिए, ठीक है, उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा. So it means maximum quantity of blood filling observed when, that is the answer will be at the end of diastole. मैं रिपीट करता हूं. This one is important. Nobody is going to skip this part. अगर ध्यान हट गया हो तो एडवांटेज है, फिर से पीछे जाके देख लीजिएगा. Maximum quantity of blood filling observed when, the answer will be at the end of diastole. और यहाँ पे प्रेशर कब हो रहा है? ड्यूरिंग द फिलिंग प्रोसेस. सो मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ. मैक्सिमम प्रेशर, यहाँ पे क्या था? मैक्सिमम फिलिंग. मैक्सिमम प्रेशर ऑब्जर्व एट द एंड. ठीक है. मींस अगर मैक्सिमम क्वांटिटी कब फिल हो रही है? एट द एंड ऑफ डायस्टोल. सो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम प्रेशर कब सेंस होगा? दैट विल बी एट द एंड ऑफ डायस्टोल. ओके. सो दैट्स व्हाई दिस प्रीलोड is also known as left ventricular end diastolic pressure. ओके. चीजें कनेक्ट करो. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. 1 2 3. प्रीलोड को क्या बोलोगे आप? लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्यों? क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग. देन एंड डायस्टोलिक क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस मैक्सिमम लेवल तक कब जाती है? एट द एंड ऑफ डायस्टोलिक. दैट्स व्हाई सेकंड वर्ड क्या आएगा? एंड डायस्टोलिक. और थर्ड चीज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्ट्रेच विल नॉट बी द गुड वर्ड. यहाँ पे आपको बोलना है प्रेशर. So left ventricular end diastolic pressure, which is nothing but your preload. Okay. Now मैं थोड़ी देर के लिए प्रोसेस से आगे आता हूँ. मैंने एक नॉर्मल क्वांटिटी, अभी सॉरी, नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग हो गई. इसके बाद में रहता है सिस्टोल. सिस्टोल मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर का सिस्टोल, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड आर्टरीज में पंप होगा. अभी यहां से आगे क्या? हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. ठीक है. यानी ब्लड को पंप करने, ब्लड को फ्लो करने के लिए जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है उसे कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. सो लेफ्ट वेंट्रिकल को एओर्टा में ब्लड पुश करना है या फिर सिंपली आर्टरीज पे, तो एक मिनिमल रेजिस्टेंस उसे ओवरकम करना पड़ता है. अब ये मत बोलो कि वो ये वाला है. ठीक है. ये तो नेचुरली रहता है, कम ज्यादा होती है, बट एक मिनिमल वैल्यू रहती है. ठीक है. जो इससे रेलेवेंट रहती है. मिनिमल रेजिस्टेंस मस्ट बी ओवरकम बाय लेफ्ट वेंट्रिकल टू पंप ब्लड इनटू आर्टरीज.
and this minimal resistance or that strength or that work force is known as after load. Got it? ये चीज क्या थी? जो पैसिव टेंशन है, एक्टिव टेंशन है, पैसिव टेंशन मतलब वेंट्रिकल खुद तो कुछ नहीं कर रहा, ब्लड पूरा आ रहा है एट्रियम में से, बेचारा फेस कर रहा है पूरा प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी उस पर लोड डाल दिया, अभी उसको खुद को करना है, तो खुद को करने के लिए जो टेंशन आ रहा वो रहेगा आफ्टर लोड। थोड़ा समझ लो, यहाँ पे उसे काम दिए जा रहा है, वो काम देख के जो टेंशन आ रहा है उसको वो है प्री लोड, और यहाँ पे उसको काम करने का है, अभी करते वक्त जो प्रेशर आ रहा है वो है आफ्टर लोड। ओके, नाउ ये कंफ्यूज करेगा आपको, इसे मिटा देते हैं। सो इट इज द आफ्टर लोड। सिस्टोल किसके साथ डील कर रहा है? आर्टरीज के साथ। डायस्टोल किसके साथ डील कर रहा है? वेन्स के साथ। आफ्टर लोड किसके साथ डील कर रहा है? आर्टरीज के साथ। प्री लोड किसके साथ डील कर रहा है? वेन्स के साथ। नाउ अभी थोड़ा सा इधर आते हैं। प्री लोड इज डिपेंडेंट ऑन वेनस रिटर्न एंड वेनस प्रेशर। वेनस मतलब वेन्स का, वेन्स में कितना ब्लड मतलब क्वांटिटी वाइज रिटर्न आ रहा है टू द डायस्टोल, क्योंकि जितनी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी उतना क्वांटिटी का प्रेशर ज्यादा ये एक्सपीरियंस करेंगे, और जितने प्रेशर के साथ आ रहा है सेम विल बी द प्रॉब्लम देयर, ठीक है। सो अब दोनों में से कोई एक चीज डिक्रीज करते हो तो ऑटोमेटिकली प्रीलोड इज गोइंग टू बी डिक्रीज। अभी आते हैं इधर, मिनिमल रेजिस्टेंस मस्ट बी ओवरकम। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा रहेगा कि यहाँ पे ज्यादा रहेगा? आंसर विल बी दिस पार्ट। अगर आप कंस्ट्रिक्ट करते हो ब्लड वेसल्स को तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, अगर आप डायलेट करते हो तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, ठीक है। सो आफ्टर लोड मोस्टली किस चीज के साथ करस्पॉन्ड करता है? दैट इज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और प्रीलोड की अगर मैं बात करूं तो प्रीलोड किसके साथ करस्पॉन्ड करता है? 1 and 2। ओके, नाउ थोड़ा सा पॉज ले लो, चीजें अगर समझ में नहीं आई होगी तो थोड़ा सा रुको, पीछे फिर से जाके देख लो, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इन दोनों चीजों को जो ऑलरेडी समझने में आपको शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, अभी आपको इसे कोरिलेट करना है विद द CHF। नाउ सी, मैं बार बार इंटेंशनली CHF को बीच में से नहीं ला रहा हूँ, वो आ जाता है ऑटोमेटिकली क्योंकि ये कंसेप्ट उसके साथ रिलेटेड है। नाउ relevance with the CHF, congestive heart failure। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है CHF के केस में, उसका जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है, बट उसमें जो वेंट्रिकुलर फीलिंग आ रही है वो तो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, मतलब उस पर प्रीलोड बढ़ते जाता है, ठीक है, एंड आफ्टर लोड का इतना कनेक्शन नहीं आता। सो नाउ CHF के केस में आप कहाँ पे टारगेट करोगे? विथ प्रीलोड बट नॉट विथ द वेनस प्रेशर, यू विल द टारगेट द वेनस रिटर्न, ठीक है। ये एक बात हुई। अभी ब्लड कम नहीं करना है, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। वेन्स, वेन्स में से ब्लड जा रहा है डायस्टोल। इन केस ऑफ CHF you will need a venodilator। एंड इन केस ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस जहां पे ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम जाते वक्त हो रहा है, हियर यू विल नीड, ठीक है, बट ऐसा स्ट्रिंजेंट नहीं है कि आपको वेनोडायलेटर से ही आप CHF क्योर कर सकते हो या आर्टेरियल डायलेशन से ही angina pectoris क्योर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देयर आर सम मिक्स्ड एजेंट आल्सो व्हिच आर गुड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। गिव मी अ मिनट ओनली। सॉरी, ये चीज हो गई, इसे आप इरेज कर दो या फिर मैं इरेज करता हूँ।
नाउ अगर रिटर्न टू द आफ्टर लोड प्री लोड विथ कनेक्शन विद द वेनोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। सिस्टोल के बाद में ब्लड जा रहा है आर्टरीज में, ठीक है। अगर मैं आर्टरीज को डायलेट करता हूं, इफ आई एम गोइंग टू डायलेट द आर्टरीज, which one will get reduced? The answer will be afterload. Got it? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में ब्लड कहाँ पे जा रहा था? आर्टरीज का। और आफ्टरलोड मतलब क्या है? एक मिनिमल रेजिस्टेंस जो आपको ओवरकम करना है। मैं अगर मुझे ये रेजिस्टेंस कम कैसे करते आएगा? जब मैं आर्टरीज का डायलेशन करूंगा। जब मैं आर्टरीज का डायलेशन करता हूं तो मेरे कौन सा लोड कम होगा? मेरा आफ्टरलोड कम होगा। सो ये हो गया आर्टरीज से रिलेटेड आर्टेरियोलर डायलेटर, आर्टेरियोलर डायलेशन से आफ्टरलोड। मैं चलता हूं इस हिस्से की तरफ। अगर मैं वेन्स को डायलेट करता हूं, वेन्स का डायलेशन होने की वजह से ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन, या फिर मैं कहूं ब्लड फ्लो टू द हार्ट डिक्रीजेस, ठीक है। मींस वेनस रिटर्न इज गोइंग टू बी डिक्रीज विद द वेनोडाइलेशन। एट द सेम टाइम with the venodilation blood pressure is also decreasing. So जो एक रिटर्न आ रहा है यहाँ पे क्वांटिटी वो डिक्रीज होता है, और जैसे ये डिक्रीज होगा वैसे ही आपका प्रीलोड भी डिक्रीज होगा। ये दोनों चीजें आपको खेलनी है CHF में, और ये दोनों चीजें स्पेशली दिस वन आपको खेलनी है हाइपरटेंशन में। And all of these things you have to play in case of hypertension. ये थे हमारे बेसिक्स फॉर एंटायर कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी। किसी ने पास फॉरवर्ड करके देखा हो, यहाँ तक कोई पहुंचा नहीं हो तो पूरा देख लो। थैंक यू।